chapter unit number 7. You know about the big tail and it's flying. You fly on the sky. You know about that? Who is it? So this is the sky. This is the sky. In that sky, we see the kite. So that's called a kite. So today we are going to learn about the Sundari. This is the name of this kite. This chapter is adapted Cleo by Ruth Dixon. Ruth Dixon. So all of you open your textbook, page number 80. So all of you open your textbook, page number 80. Sorry, page number 80, chapter number second, unit number 7. So all of you listen carefully this story. First I will read that story and after that I will explain that story. Okay. So all of you open your textbook and put the finger on that first sentence. Sundari. Sundari was a big red, white and blue kite. Sundari was a big red, white and blue kite. When Bobby made her, she smiled at him. You are beautiful and I will call you Sundari, he said. One day, Bobby took Sundari to the fair. The band was playing and everyone was smiling. A merry-go-round was playing a happy little tune. It was carrying lots of boys and girls round and round on its wooden animals. Bobby looked for an open space where he could run and fly his kite. Sundari looked too. Out in the grass ran Bobby, holding up his kite as high as he could. Puff, the wind came along. Sundari started to fly up, but she could not go very high. A little dog was holding onto her long tail. It was in a mouth. Bobby shooed the dog away. Well, try again, Bobby said. This time Sundari leaped up in the air. She tugged hard. Oh, how she wanted Bobby to let go of her string, and she gave a big tug. Bobby had to let her go. We fly, Sundari. Now I can fly as high I please, and away she went. She flew up in the air. So all of you listen carefully the story. Sundari was a big red, white and blue kite. तो सुंदरी कौन थी? सुंदरी एक काइट है, हम जिसे कहते हैं पतंग। तो किस कलर की थी? रेड, व्हाइट एंड ब्लू कलर की क्या थी? सुंदरी। When Bobby made her, she smiled at him. जब बॉबी उसको बना रहा था तो वो क्या कर रही थी? तभी वो क्या कर रही थी? उसको मुस्कुरा रही थी। When Bobby made her, she smiled at him. You are beautiful and I will call you Sundari, he said. तो बॉबी कहता है कि You are beautiful, आप बहुत ही आप सुंदर हो, इसलिए मैं आपका नाम क्या रखूंगा? सुंदरी। One day Bobby took Sundari to the fair. तो एक दिन बॉबी सुंदरी को लेके जहाँ पे वो उर्स जो होता है उस उर्स में उसे लेके जाता है। The band was playing and everyone was smiling. सभी तरफ अपने अपने बैंड्स जो वादक होते हैं, जो तमाशा ढोल वाले होते हैं, उनके आवाज आ रही थी। A merry-go-round was playing a happy little tune. merry-go-round होता है वो राउंड ऐसे घूमता रहता है। उस merry-go-round के ऊपर बच्चे बैठे थे, वो चिल्ला के वो क्या कर रहा था? merry-go-round around and round घूम रहा था। It was crying lots of boys and girls round and round on its wooden animals. कुछ बच्चे उस पर बैठकर रो रहे थे, कुछ बच्चे हंस रहे थे, कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे। Bobby looked for an open space where he could run and fly his kite. तो बॉबी क्या कर रहा था? वो इधर उधर देख रहा था कि उसे ऐसी जगह मिले जिस जगह से वो क्या करे? सुंदरी को ऐसे भागते जाए और उसे ऐसे उड़ा सके। तो सुंदरी लुकड़ टू, तो सुंदरी देखती है आउट इन द ग्रास रैन बॉबी। तो जहाँ पे जो ग्रास होती है उस ग्रास पे बॉबी क्या जाता है? आउटसाइड में जाता है। होल्डिंग अप हिज काइट्स as high as he could. तो क्या कहता है? जब वो काइट लेके ऐसे जा रहा था तो वो ऊपर ले जाता है, लेकिन क्या होता है? बॉबी
of the wind came along, Sundari started to fly up, but she could not go very high. जब जो हवा का झोंका आ जाता है तब क्या होता है, वो जो सुंदरी होती है वो स्लोली स्लोली ऊपर जाते हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं जा सकती थी। तो क्या होता है देखिए, but she could not go very high. A little dog was holding on to her long tail. जो लिटिल डॉग होता है वो क्या कहते हैं, लिटिल डॉग उसकी जो पूंछ होती है सुंदरी की, उस पूंछ को क्या कहते हैं, अपने दांत में जकड़ लेता है। It was in his mouth, वो अपने जो दांत होते हैं उस दांत में पकड़ लेता है। बॉबी शूट द डॉग, तो बॉबी क्या कहता है, श करता है और उसे वहां से भगा देता है। We'll try again, बॉबी said, ठीक है और एक बार हम क्या कहते हैं, प्रयास करते हैं। This time Sundari leaped up in the air and she tugged hard. This time क्या होता है, that time what happens, सुंदरी लिप्ड, तो क्या होता है, हवा का झोंका बहुत ही तेजी से आता है। and she tugged hard, तो जो बच्चा होता है वो क्या करता है, उसको बहुत ही तेजी से ऐसे हवा को झुकाने से वो टग बहुत ही घट्ट हो जाता है। तो हार्ड इसका मतलब होता है ताना, तो इसको बहुत ही ज्यादा। ओ हाउ शी वांटेड बॉबी लेट गो फॉर स्प्रिंग एंड शी गिव अ बिग टग एंड बॉबी हैड टू लेट हर गो। तो जब बॉबी क्या करता है, बॉबी उसे लेता है और क्या करता है, वो ऐसे टग करता है। दैट टाइम व्हाट हैपेंस, she cut that string and she is going to bend down. So what happened, we cried Sundari, now I can fly as high as I please, and away she went to she flew up in the air. बॉबी क्या करता है, जब वो ऐसे जोर का हवा का झोंका जोर से आता है तब बॉबी क्या करता है, उसे जोर से ऐसे खींच रहा होता है। दैट टाइम क्या होता है, वो जो दोरा होता है, वो जो स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, वहां से टूट जाती है और सुंदरी ऊपर ही क्या होती है, चली जाती है। तो इसी तरह से हमारी ये क्या स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। तो बच्चों इसमें जो न्यू वर्ड्स है वो न्यू वर्ड्स हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। ओके, सो फर्स्ट वन बैंड, न्यू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज द बैंड। You know about the band? Band means वादक, तबला, तमाशा वाले जो होते हैं उसे कहते हैं हम band. Next DZ, DZ का मतलब चक्कर आना। DZ का मतलब क्या होता है, चक्कर आना। Next third one, स्माइल का मतलब क्या होता है, मुस्कुराना। स्माइल का मतलब क्या होता है, मुस्कुराना। नेक्स्ट स्ट्रिंग का मतलब होता है तार, दरवाजा हम कहते हैं मराठी में दोरा। टग का मतलब क्या होता है बच्चों, बल से खींचना। टग जैसे कि हवा का तेज झोंका आता है वो क्या करता है, इसे जोर से खींचता है, उसे हम क्या कहते हैं, टग। और नेक्स्ट लास्ट वन इज द विंड का मतलब होता है हवा। तो बच्चों आपको समझ में स्टोरी, इन दिस स्टोरी देयर आर 6 न्यू वर्ड्स, बैंड, डीजी, स्माइल, स्ट्रिंग, टग एंड विंड। सो BAND, बैंड का मतलब होता है वादक। DIZZY, डीजी का मतलब होता है चक्के जैसे आना। SMILE, स्माइल मतलब मुस्कुराना। STRING, स्ट्रिंग का मतलब होता है तार। TUG, टग का मतलब है बल से खींचना। और WIND, विंड का मतलब होता है हवा का झोंका। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये जो न्यू वर्ड्स है, ये न्यू वर्ड्स आपको कहना है एक वर्ड 5 टाइम्स यू हैव टू रोटेट। तो क्या करना है आपको, ये जो न्यू वर्ड्स है आपको कितने बार लिखने हैं, 5 बार ये न्यू वर्ड्स क्या करने हैं आपको लिखने हैं। ओके, सो दिस इज द लेट्स रीड। I feel dizzy on a merry-go-round. I feel dizzy on a merry-go-round. Next, the band was playing a tune. Next, we see the questions and answer, page number 82. Who made Sundari? We see the questions and answer. So all of you pause the video and rotate all the new words. After that new words, I will give you here questions and answers. So all of you understood these new words? Okay, so you have to pause the video and you have to write it. Here we see the questions and answers. Okay, who made Sundari?
who made सुंदरी। तो सुंदरी को किसने बनाया था? सुंदरी क्या? बॉबी मेड सुंदरी। किसने बनाया था? बॉबी ने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉबी मेड सुंदरी। तो ये क्या है? हमारा आंसर है। क्या आंसर है? सुंदरी को किसने बनाया? सुंदरी को बॉबी मेड सुंदरी। बॉबी ने सुंदरी को बनाया। नेक्स्ट, व्हाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी? व्हाई डिड बॉबी call his kite सुंदरी। तो उसमें आपने क्या करना? उसमें काइट को क्या कहा? सुंदरी। क्यों कहा? बिकॉज इट वॉज ब्यूटीफुल। सो व्हाट द आंसर? He did. So Bobby called his Sundari. Bobby called Sundari because it was beautiful. Because it was beautiful. Because Bobby called her Sundari because it was beautiful. वो क्या थी? बहुत ही सुंदर थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा? सुंदरी। ओके, सो नेक्स्ट वन, डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स? तो आपको पतंग चलना अच्छा लगता है? तो आपको अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है वहां पे? यस, आई लाइक टू फ्लाई काइट्स। नेक्स्ट, हु हेल्प्स यू टू फ्लाई काइट्स? तो आपको काइट बनाने में कौन कौन मदद करता है? सिस्टर, फादर, मदर, एनीवेयर इज देयर, सो दैट्स यू हैव टू हेल्प हिम। सो फॉर एग्जांपल योर फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट, लेट्स शेयर। So let's say what we have to do. Take the objects you need to fly a kite. तो काइट को हवा में उड़ाने के लिए हमें कौन सी चीजें लगती है? तो उस चीजों को हमें क्या करना है? कलर करना है। तो कौन सी चीजें लगती है? कलर द काइट्स। रोलर, ग्लू, पेयर ऑफ सीजर्स, स्टिक, बास्केट, पेपर एंड बॉल। नेम द ऑब्जेक्ट्स इन योर ओन लैंग्वेज। तो आपको क्या करना है? आपके लैंग्वेज में भी बताना है और आपको क्या करना है? इसमें से कौन सी चीजें लगती है काइट बनाने में, वो चीजों को आपको क्या करना है? टिक करना है। ओके, नेक्स्ट वी सी द ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइंस। तो आपके जो डॉटेड लाइंस दिए हैं बच्चों आपको, तो ये जो डॉटेड लाइंस है वो आपको क्या करना है? ये कंप्लीट करना है और मुझे आपको क्या करना है? इसके फोटोज मुझे भेजना है। ओके, सो नेक्स्ट वी सी द लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पे एक स्टोरी है, तो क्या है? द अम्ब्रेला एंड द क्रो। तो यहाँ पे अम्ब्रेला है और क्रो है। तो क्या होता है? बहुत ही बारिश, तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश में लड़की क्या करे? नाचने के लिए वहां पे आती है। तो डांसिंग करने के लिए आती है। तब क्या होता है? ये कौवा क्या होता है? एक पेड़ के ऊपर बैठा था और कौवा क्या करता है? उसका जो छाता होता है वो छाता क्या करता है? उड़ा के ले जाता है। वो उड़ा के लेके जाके क्या करता है? अपना नेस्ट करता है, जो अपना घर होता है वो बसेरा वहां पे करता है। रोज वो बसेरे में अपने बच्चों को वहां पे उस छतरी में रखता है। So how to do that story? So rearrange the following sentences in the right order to make it into a story on the left पेज। तो मैंने जो हिंदी में बताया यहाँ पे इंग्लिश में दिया है। ये जो सेंटेंस है वो क्या है? रीअरेंज करके हमें क्या करना है? इजी तरह से लिखना है। जैसे कि a wind blows, it is raining, the crow flies away with the umbrella, the girl has an umbrella, the umbrella is now on nest and the umbrella hangs from a tree। तो ये जो रीअरेंज सेंटेंस है क्या करना है आपको? 1 2 3 4 के हिसाब से आपको क्या करना है? लगाने है और आपको क्या करना है? वो जो स्टोरी है वो स्टोरी कंप्लीट करना है। Now say the story in
ओके, सो पेज नंबर 85 पे आपको क्या करना है, लेट्स रीड एंड राइट। वो क्या करना है आपको, ट्रेस द dotted words and you have to complete it. Okay students, here we complete our unit test first, unit test second syllabus. Okay, in your homework you have to complete all the questions and answer in our syllabus. In our unit test second syllabus is unit, wait, unit 6 and 7. In our unit test second syllabus is the, I will write here. Okay, so for the video I will have to write these questions and answers. Okay. Okay students, this is the syllabus of unit test second. English unit 6 and 7 and grammar part chapter 25 to 36. Okay students, so you have to do the study of this unit, English unit 6 and 7 and grammar chapter 25 to 36. Okay students, all have understood this? Okay, so today